Good morning to all of you. Today's my topic is cyber security and ethics. In this session, we will learn about what is the meaning of cyber security and ethics. So, today's topic, the first page introduction, then second page cyber security and its type, third what is the meaning of cyber crimes and its types, fourth importance of cyber security, fifth cyber ethics, and last but not in the least awareness program regarding how to use internet. As we know that internet has become one of the integral part of our daily life. Without internet, our life becomes not in a proper way. It has transformed the way we communicate, make friends, share updates, play games, and make online shopping with the help of internet. They are impacting most aspect of our daily life. Cyberspace connects us virtually with across the online user across the globe. With increasing use of cyberspace, cyber crimes, especially against women and children, such as cyber stalking, cyber bullying, cyber harassment, child pornography, rape, content, etc., are also increased rapidly. To stay safe in the online world, it is important to follow some cyber safe practice which may help in making our online experience and productivity. So, what is the meaning of cyber? Before going to start the cyber security and their ethics, first we know that what is the meaning of cyber. The word cyber is a combining form relating to information technology, internet and virtual reality. It is a consisting a part of cyber that create a cyber. सर अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो साइबर बोलेंगे? No. Next, before going to start the meaning of cyber, first we know that how the cyber word comes from, where the word cyber comes from. As we know that the history of internet in last 40 years, the internet become changing itself. It was started in 1970 as a ARPANET network. This is the history of internet, where the internet come from. In 1970, ARPANET was the agency which create the data transfer between two or more computers. Then 1992, the word www come into the existence. Then after 2001, 2004 and here 2003, the Facebook, the first social networking site also come into existence. It means that last 10 years, since 1995 to 2005, only 10 years that create the global changes in our daily life. I'm not going to explain only the history of internet. Our topic is cyber security and ethics. So come on the meaning of cyber security. What is the meaning of cyber security and how we can secure ourselves in cyber security? Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile phones, electronic system, networks and data from malicious attack. Malicious attack means unknown person who generally make a call to us and get their bank balance information, credit card number, bank account number, OTP, and then
amount get deducted in our bank account. It is also known as information technology security. Cyber security is also known as information technology security. Types of cyber security. Every organization's assets are the combination of variety of different systems. These systems have a strong coordinated efforts across all of its systems. Therefore, we can categorize cyber security in the following subdomains. First is called network security. Network security basically involves implementing of hardware and software to secure a computer network from unauthorized access and misuse. This security helps us organization to protect its assets against external and internal threats. This is called the network security. Second, application security. Application security, it involves protecting the software and devices from unwanted threats. This protection can be done by updating the apps to ensure they are secure from attacks. Third, information security or data security. It involves implementing a strong data storage mechanism to maintain the integrity and privacy of data, both in storage and its threads. Fourth, identity management. It deals with procedure for determining the level of access that each individual has within an organization. Operational security. It involves processing and making decisions on handling and security data assets. Mobile security. It involves security the personal data storage on mobile devices against various malicious threats. These threats are unauthorized access, devices lost, theft and malware, etc. Next, what is cyber crime? Cyber crime is a criminal activity that uses a computer network or network device. Most cyber crime is committed by hackers who want to make money. Cyber crime can be carried out by individuals or organizations. Some cyber criminals are organized, use advanced technique and are highly technically skilled. What are the types of cyber crime? Types of cyber crime includes email and internet fraud, identity fraud, where the personal information is stolen and used, theft of financial or card payment data, theft and sale of corporate data, cyber extortion. Cyber extortion means demanding money to prevent या threaten attack. मतलब अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम बार बार आपके वेबसाइट को क्रैक कर देंगे, हैक कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड साइबर एक्सटॉर्शन. हैकर्स एक्सेस गवर्नमेंट और कंपनी डाटा. ये आप लोग इससे फेमिलियर होंगे. हाल में ही हम लोग देखे हैं एम्स जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल इंडिया का है और उसका जो है वेबसाइट जो है वो हैक हो गया.
तो हैकर्स बेसिकली टारगेट करते हैं हमारे गवर्नमेंटल वेबसाइट्स को, ताकि उसको अपने कंट्रोल में रख के साइबर क्राइम किया जा सके। एंड सेलिंग इलीगल आइटम्स ऑनलाइन, बहुत सारे आइटम्स आजकल ऑनलाइन जो है बेचे जा रहे हैं, जिसको मना है नहीं बेचना है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज importance of cyber security, how we can secure our computer, our network with cyber security. Today we live in a digital era where all aspects of our life depend upon the network, computer and other electronic devices and software applications. All critical infrastructure such as banking system, healthcare, financial institutions, governments, and manufacturing industries uses devices connected to the internet as a core part of their operation. So we need to secure our cyber. Some of their information, such as intellectual property, financial data, and personal data, can be sensitive for unauthorized access or export that could have negative consequences. This information gives intruders and threat actors to infiltrate them or financial gain, extortion, political or social motives. Types of cyber security threats. What is the meaning of threat? What is threat? A threat in cyber security is a malicious activity by an individual या group of individuals या organizations to corrupt या steal data, gain access to a network. थ्रेट बेसिकली जो कंप्यूटर में हम लोग बार बार थ्रेट वर्ड का यूज कर रहे हैं। थ्रेट बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसका सिर्फ काम होता है क्या, आपसे बात करके, आपसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके आपसे कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेना। सेम इंसिडेंट 15 दिन या 20 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था। फोन किया कि हम एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, महेश शर्मा, आपका जो है क्रेडिट कार्ड में जो है रिवार्ड जो है आया हुआ है, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया तो आपको जो है 4,519 रुपीज का रिवार्ड आया। तो रिवार्ड को रिसीव करने के लिए क्या करना होगा, तो रिवार्ड को रिसीव करने के लिए आप अपने मोबाइल बैंक के एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ जो है क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर आप जो है कंट्रोल एक्सेस में जाइए। तो उसकी बातों से लगा जैसे कि वो बिल्कुल जो है कंपनी से बोल रहा है, एक्सिस बैंक के कंपनी से बोल रहा है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जहाँ जहाँ उसने कहा ये क्लिक करिए, वैसे क्लिक करिए, वहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन जैसे उसने कहा कि आप कंट्रोल सेक्शन को जो है आप एक्सेस करिए और वहाँ पे आपका ऑनलाइन शॉपिंग का जो कमांड जो है, लिमिट जो है वो कहाँ तक दिखा रहा है। मैंने कहा उसको तो हमने 2000 तक रखा हुआ है, 100 कहाँ तक कर रहा है, हम 100 तो इसमें कर रहा है 75,000 तक कर रहा है, तो आप सर उसको फुल कर दीजिए। तो हम कहे ठीक है सर, हम उसको फुल कर देते हैं। और क्या करना होगा सर, तो POS कितना है सर, आप कह वो तो 1000 है, उसको भी सर जो है 75 कर दीजिए। जब 2 बार वो बोला उतने देर में हम समझ गए कि हाँ ये आदमी है क्या, रिवॉर्ड्स क्या चाहिए। तीसरी चीज, इतना करने के बाद तब बोला कि आप जो है रिवॉर्ड्स अभी भी नहीं शो कर रहा है, रिवॉर्ड्स कोई, आप कैसे रिवॉर्ड्स को लेना चाहेंगे, हमें डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दीजिए, ये दबाइए वो दबाइए नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दीजिए। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एंड इथिक्स के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये सबके लिए जानने के लिए जरूरी है। अगर हम लोग अवेयर नहीं रहेंगे, नहीं जानकारी रहेगा, नहीं नॉलेज रहेगा, तो आपसे बात करके आपको जैसे कि लगेगा कि हाँ सच में जो है इस तरीके का कुछ है। इसमें सब आपका सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस। अगर आपके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है,
तो आपसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि उसने मेरे से बात किया, हो सकता है मेरे अलावा कोई और दूसरे आदमी से बात करेगा, जाहिर सी बात है। इवन एक्सिस बैंक में हम जाके बताए भी थे सर ऐसा जो है आपके यहाँ से फ़ोन आया था, इस नंबर से फ़ोन आया था। तो उस आदमी ने मेरे को कहा सर आप अभी कह रहे हैं, देखिए मेरे पास एक रिटेन में एप्लीकेशन आया है, 1.5 लाख रुपया जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया है। साइबर फ्रॉड जो बेसिकली फ़ोन करते हैं एक्सिस बैंक कस्टमर केयर से, कॉल सेंटर से, जब एक्सिस बैंक से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से, या तो आप इंटरटेन ही नहीं करिए और नहीं तो अगर आपके पास समय हो तो बात करिए। मेरा बात करने का मेन उद्देश्य उससे ये था जानने का, हमको वो टेक्निक देखना था कि इन लोग बात करते समय कौन सा टेक्निक यूज़ करता है, क्या करता है। बात करने के बाद रिवॉर्ड्स मेरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें सर? तो एक काम करिए सर, आपको मैसेज भेजे हैं, उस पर एक लिंक है, ठीक है, उस लिंक को आप क्लिक करिए। लिंक को क्लिक किए तो कहाँ लेकर गया? वो एक्सिस बैंक का वेबसाइट पे, लेकिन वो एक्सिस बैंक का ओरिजिनल वेबसाइट नहीं था, उसी का जैसा मिलता जुलता वो वेबसाइट था। तो अवेयरनेस जरूरी है। आज का जो सेशन हमारा होगा उसमें हर एक छोटा से छोटा चीज़ हम बताएंगे। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं, ये अवेयरनेस के लिए है। आप कैसे पहचानेंगे? हम तो देख के पहचान लिए। उसमें एक्सिस बैंक का जैसा वेबसाइट बना हुआ है, ऑप्शन क्या खुला था उसमें? क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो आप डालिए। तो रैंडम हम कुछ भी नंबर डाल दिए, जो दिमाग में नंबर आया वो डाल दिए। कार्ड पर नेम क्या शो कर रहा है? XYZ PQRS वो टाइप हो गया। अब क्या करें सर? तो उसमें वैलिडिटी और एक्सपायरी लिखा होगा, हम ठीक है वो भी डाल देते हैं 000000 और लास्ट का जो एक्सिस बैंक कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVC लिखा हुआ है वो भी हम 00 डाल दिए। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है सर मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर भी डाल दिए 999999। नेक्स्ट सर OTP गया हो। मेरा जो कंसर्न था उससे सीखने का, आखिर में हमारे पास का इंफॉर्मेशन उसके पास जाता कैसे। तो उसने क्या किया, एक्सिस बैंक के जैसा एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाया और आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड जो है फिजिकल फॉर्म में है, उसका जो इंफॉर्मेशन जो उसमें लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन वो आपसे टाइप करा के अपने पास मंगा लिया। नेक्स्ट क्या हुआ, आपने जो OTP दिया, जाहिर सी बात है अगर मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा तो आपके पास OTP बैंक का आएगा, बैंक का OTP आएगा, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी तरीके से उसको डिजाइन किया होगा इंटरनली रूप से। जब पेमेंट पर क्लिक करते समय जो हम लोग ऑनलाइन में करते हैं वो वहाँ पे किया होगा। तो मेरे पास तो OTP रिसीव हुआ नहीं, तो वो OTP उसके पास चला जाता है। उसके बाद फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर में वो 2 4 5 लैपटॉप खोल के रखा होगा, वहाँ से शॉपिंग करते समय वो सारा डिटेल पेमेंट के लिए वो क्लिक कर देगा। आज आपके क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट जो है वो रिलीज हो गया और उस केस में बैंक आपका कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ तो सर उसको अटेंड ही मत कीजिए, आप अटेंड नहीं करिए, नहीं तो फॉल्स इंफॉर्मेशन सीखने के लिए। हाँ, कुछ अगर आपको सीखना है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इंटरटेन नहीं करिए, नहीं समझ में आएगा, वो अपने बातों से किसी न किसी रूप से जो है वो आपको डाइवर्ट कर देगा। तो उसी चीज के बारे में जो थ्रेट वर्ड का यूज कर रहे थे, वो थ्रेट का कॉन्सेप्ट है। थ्रेट जो है, थ्रेट इज ए साइबर सिक्योरिटी इन अ मैलिशियस एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ एक इंडिविजुअल है जो इंडिविजुअल इस काम को करता है, या ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक कंपनी बना दिया, 50 लड़के को रख दिया। दिल्ली में क्या होता है और छोटे छोटे शहरों में क्या होता है, एक छोटा सा इतना बड़ा रूम है, 10 आदमी को बैठा दिया, सबको दे दिया कि भाई फोन करो, आपका डेटा, आपका मोबाइल नंबर, सारा चीज अवेलेबल रहता है। वो कहाँ से मिलता है, वो सब चीज हम आगे आपको बताएंगे। The cyber community defines the following threats available today. Types of cyber threats. Cyber threats basically कितने टाइप का होगा? Malware, phishing, man in the middle, distributed denial of services, brute force, SQL injection and domain name system attack. डोमेन नेम सिस्टम अटैक जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, सेम एक्सिस बैंक के जैसा एक डुप्लीकेट डोमेन को क्रिएट करना, डोमेन नेम सिस्टम, बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। मालवेयर मीन्स मालिशियस सॉफ्टवेयर
which is the most common cyber attacking tool. It is used by cyber criminals or hackers to disrupt या damage a legitimate users systems. The following are the important types of malware created by the hackers. Next, virus. It is a malicious piece of code that is spread from one device to another. It can clean files and spread throughout a computer system, infecting files, stolen information, or damaged devices. Next, spyware. It is a software that security records information about users' activity on their system. For example, spyware could capture credit card details that can be used by the cyber criminals for unauthorized shopping, money withdrawal, etc. Trojan. It is a type of software या file to fool us into downloading and running. Its primary purpose to corrupt या steal data from our devices or do other harmful activity on our networks. Ransomware. It is a piece of software that encrypts a user files and data on a device, rendering them unusable or erasing. ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से डेटा जो ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो जाएगा. तो ये भी एक टाइप का वायरस है. नेक्स्ट, OWS. It is a piece of software that spread copies of itself from device to device without human interaction. ये इस तरीके का वायरस है. आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपने जैसा फाइल क्रिएट करना शुरू कर जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरेंशन का. मतलब आपको उसमें कोई जरूरत नहीं है. अगर वो वायरस घुस गया सिस्टम में तो अपने आप खुद से क्रिएट करना शुरू करेगा. इट डज नॉट रिक्वायर देम टू अटैच themselves to any program to steal or damage the data. Next, adware. It is advertising software used to express malware and display advertisement on our devices. It is unwanted program that is installed without the user permission. आपके परमिशन के बिना ही वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में. बस उसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. इंटरनेट लगा के गूगल ब्राउज़र खोल के आप कुछ भी सर्च कीजिए, बस वो डेटा आपसे सर्च करके रख लिया. आजकल के जो वायरस जो बन रहे हैं, आजकल के जो हैकर्स हैं, वो आदमी हैकर्स नहीं अपना रहे हैं, वो कंप्लीट रूप से एक प्रोग्राम डिपेंडेंट है. वो सॉफ्टवेयर बना के अब डाल दिया गया है. आप दिन भर में कितने देर फेसबुक चलाते हैं, कितने देर आप व्हाट्सएप करते हैं, कितना देर आप यूट्यूब देखते हैं, आपके एक इंडिविजुअल का वो पर डे का रिकॉर्ड पिछले 1 साल से वो सब जानता है. और हम कोई नहीं बच सकते. हमको इंटरनेट पर चलना ही है, इंटरनेट यूज करना ही है. आपको नहीं पता होगा कि आपने किस दिन क्या किया, लेकिन जो सर्वर है जहाँ पे अब ये इंफॉर्मेशन सब रखी जा रही है, वो हर डे का इंडिविजुअल का रिकॉर्ड उसके पास है. आप अपने एक मोबाइल से चलाते हैं, अपने एक जीमेल से चलाते हैं, और उसके द्वारा आप लॉगिन करते हैं. आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हर एक चीज़ उसको वॉच करते रह रहा है. और जो हैकर्स है जो है वो क्या करता है, वो बड़े बड़े कंपनी को पैसा देके आपका जो है वो डेटा खरीद लिया. एक बार दिया डेटा 10,000 50,000 रुपया दिया, हमको इतना मोबाइल नंबर चाहिए, एक्टिव में चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है उसके पास चला जाता है. इसी को देखते हुए CBSE ने भी क्लास 9 और क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन में आज से 3-4 साल पहले स्टूडेंट का जो है मोबाइल नंबर कंपलसरी था डालना. या आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालिए. हम लोग रजिस्ट्रेशन में उसका मोबाइल नंबर डालते थे. अब CBSE के ऑफिस से IIT नीट और JEE की तैयारी कराने के लिए
जो कोचिंग वाले हैं, वो लोग सीबीएसई से ही किसी एम्प्लॉय को पैसा देके वो डेटा खरीद लेते थे। हमको पटना रीजन के सारे स्कूल का जो है उसका डेटा देगा, 50,000, 10,000, 5,000 जितना में हुआ दिया, वो सब मोबाइल नंबर खरीद लिया। अब उस स्टूडेंट को फ़ोन करेगा कि आप ये बोल रहे हैं आप नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सर हमारा स्कीम है, ऐसे करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे पहले ये सब चीज़ होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है कि अपने आप को जो है अब हर तरह से सिक्योर करने जा रहा है। तो एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बोनेट्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ interconnected malware infected devices that allow the cyber criminals to control them. It enables cyber criminals to get credential leak, unauthorized access and data left without the user permission. Phishing. Phishing is a type of cyber crime in which a sender seems to come from a genuine organization like PayPal, eBay, etc. They target via email, phone call या text message with a link to tell us to click on that link. This link will redirect them to fraud websites to steal sensitive data such as personal information, banking and credit card information, social security numbers, username and password. Clicking on the link will also install malware on the target devices that allow hackers to control device remotely. जैसे ही हम लोग के पास एक लिंक आया, फिशिंग वो प्रोसेस क्या है, साइबर क्राइम में फिशिंग, वो एक मैसेज आया आज आप उस लिंक पर सर क्लिक करिए। जैसे कि अभी हमने एक्सिस बैंक का एक एग्जांपल बताया, आप उस लिंक को क्लिक किए, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स आप डालिए और वो क्या करेगा, एक मेलवेयर जो है, वायरस जो है आपके सिस्टम में वो इंजेक्ट कर देगा, वो इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में चला गया। क्योंकि जिस दिन से उसका फोन आया और वो सारा एक्टिविटी हम किए, अब उसके बाद एक्सिस बैंक बंद हो गया है, अब आजकल 2 दिन से देख रहे हैं HDFC बैंक शुरू हो गया है, क्रेडिट कार्ड। तो वो क्या करता है, वो आपसे देख लिया, बात करके समझ गया और आपका वो नंबर जो है, सर ये तो नंबर लाइव है, ये नंबर किसी दूसरे हैकर को ट्रांसफर कर देता है, जी अब ये ले लीजिए, इससे बात करते रहिएगा, फिर वो ट्रांसफर करेगा, वहाँ से हमको ICICI में सब मालूम है। इस तरीके की एक्टिविटी वो चलता रहेगा। अगर एक बार आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे तो वो किसी न किसी को वो ट्रांसफर करते रहेगा। इनको हमेशा फोन करते रहिए, चेक करते रहिए, कभी तो किसी दूसरे के हाथ में हो जाएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है फिशिंग इज ए साइबर क्राइम, जिसमें ये सारा डिवाइसेस में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपके डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करता है, मतलब कहीं दूसरी जगह बैठा होगा, वहां से आपके मोबाइल को वो एक्सेस करेगा। Man in the middle. A man in the middle attack is a type of cyber threat in which cyber criminals intercept a conversation or data transfer between two individuals. Once the cyber criminal place themselves in the middle of a two-party communication, they seems like genuine participant and can get sensitive information and return different responses. The main objective of these types of attack is to gain access to customer data. For example, a cyber criminal could intercept data passing between the target device and the network on an unprotected Wi-Fi network. कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं पे तो वाईफाई मिल जाता है फ्री में, हम लोग बहुत खुश होते हैं जब फ्री में मिल गया वाईफाई, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्री वाईफाई में कभी भी भूल के भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करिएगा। कारण क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते समय आप जो है फ्री नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो फ्री नेटवर्क में बगल में और भी कोई है जो फ्री में नेटवर्क यूज कर रहा है और वो डेटा जो है आपका वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, डेटा जो है वो कैप्चर कर लेगा। वो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग में, ये कॉन्सेप्ट है। जब भी आप नेटवर्क यूज करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, आप एक यूजर है और बैंकिंग दोनों के बीच में जो है एक थर्ड पार्टी जो है वो आपका
हैकर जो है वो थर्ड पार्टी इंटरनेट के रूप में आ जाएगा, वो एक लेयर क्रिएट करके वो आ जाएगा, जो भी डिटेल्स आप इंटर करिएगा उसके बाद भी मैसेज चला जाएगा। तो कभी भी आप फ्री वाईफाई वाले कॉन्सेप्ट में बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, उससे आपका इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन चोरी हो जाएगा, उससे बचना है। क्लाउड या कुछ कहा जाता है, क्लोन कर देता है, क्रिएट कर देता है। अभी मैंने जैसे सामने जो दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, बट वो सामने दिख नहीं रहा है, उसके पीछे जो है उसको निकालेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, दिस इज ए टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिस्टर्ब टारगेटेड सर्विस सर्वर, किसी सर्वर को जो है वो टारगेट करेंगे साइबर क्रिमिनल्स या सर्विसेज को, और नेटवर्क्स रेगुलर ट्रैफिक बाय फुलफिलिंग legitimate request to a target or its surrounding infrastructure with a internet traffic। कभी कभी इंटरनेट जब भी सर्च करेंगे तो इतना ना ज़्यादा उस पर ट्रैफिक हो जाएगा तो रिस्पॉन्स जो है आपका नहीं आएगा, इसीलिए कभी कभी गूगल भी सॉरी लिख के मैसेज करता है, सॉरी हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं। कारण क्या है, आपके सिस्टम में वायरस है, आपके सिस्टम में हैकर्स जो है टारगेट कर लिया। अब हम गूगल चला रहे तो लग रहा है गूगल हम चला रहे, नहीं, गूगल आप नहीं चला रहे, गूगल हैकर चला रहा है, और एक साथ मल्टीपल्स रिस्पॉन्स कर रहा है, मल्टीपल्स टाइम जो है वो सर्च कर रहा है। इसीलिए बीच में अब आजकल कैप्चा आ गया है, आप ह्यूमन है सर्च कर रहे हैं, ह्यूमन या कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च कर रहा है, तो कैप्चा का कॉन्सेप्ट भी इसी के बाद आया है, कैप्चा उस पर डाल दिया गया। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, एक ह्यूमन क्या करेगा, एक बार में एक ही चीज सर्च करेगा, लेकिन जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा जो है जब सर्च किया जाएगा तो एक सेकेंड में मल्टीपल टाइम सर्च हो जाएगा, उस केसेस में गूगल अपने आप को मैसेज डिस्प्ले करेगा, सॉरी वी कैन नॉट सर्च। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। डोमेन नेम सिस्टम अटैक, a DNS attack is a type of cyber attack in which cyber criminals take advantage of flows in a domain name system to redirect site user to malicious websites, DNS hijacking and steal data from affected computers. It is a cyber security risk because DNS system is an essential element on the internet infrastructure. What is the concept of cyberspace? Cyberspace is where people like you exchange idea using computers that are connected to the internet. It is real people communicating with over other real people. In cyberspace, your adventures are real. You can have real fun and learn a lot, but it is also possible to get into very real trouble. Hanging out with people you meet in cyberspace is not the same as being with people you know for real, your family, friends, teachers and coaches. Major security problems: virus, hacker, malware, Trojan horses, password cracking. So these are the major security problems in cyber world. What are the needs of cyber security? Cyber security is necessary since it helps in securing data from threats such as data theft or misuse. Also safeguard your system into viruses. Therefore, we need a cyber security to secure our the data from the threats. Password. Basically, we use the password in general, your name as with your date of birth. The very simple common password is use our first name @ symbol and date of birth. Such types of doing activity is very wrong. आपको उस तरीके से नहीं करना है। पासवर्ड जब भी क्रिएट करिए तो एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करिए। हम लोग पासवर्ड क्या रखते हैं 1 2 3 4, सिंपल पासवर्ड, कुछ भी जो इजीली गेस हो जाए। डेट ऑफ बर्थ, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, इवन गाड़ी का नंबर डाल देते हैं 786 डालते हैं। हाँ 786 डाल देते हैं। इस तरीके का जो नंबर्स है
इस तरीके का आप पासवर्ड को लेकर सेंसिटिव हो जाइए। पासवर्ड ऐसा चीज है जो आपके कल्पना से अलग होना चाहिए। हैकर्स जो भी है वो हमसे बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। हैकर वही पर्सन होता है जो आपसे टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। फेसबुक पे जो डालते हैं हम लोग, शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं वो रियल मत डालिए। रियल मतलब अगर आज आपका बर्थडे है तो 5 दिन बाद बर्थडे जो है सेलिब्रेट करिए फेसबुक पर। अगर आज मैरिज डे है तो 10 दिन बाद जो है मैरिज डे डालिए। वो इस तरीके का इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर रखिए। सोशल मीडिया पे कभी भी इंफॉर्मेशन सही नहीं रखिए, क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारा जो है सोशल मीडिया के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ दिखते हैं, तुरंत फोटो खींच के उसी समय डाल देते हैं। हर जगह हम लोग नहीं बच सकते हैं सर। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है जो अगर आप अपने हिसाब से अगर नहीं रखेंगे तो नहीं बचेंगे, वो पीछे लगता ही है। क्योंकि जितना नंबर ऑफ यूज जो है इंटरनेट बढ़ा है, नंबर ऑफ जो यूजेज है इंटरनेट का बढ़ा हुआ है, उसी तरीके से अब हर कोई चाहता है कि हम आराम से बैठे रहे और घर ही में बैठ के जो है कमा ले पैसा। वो क्या करेगा, वो इसी तरीके का एक्टिविटीज करेगा। लोग सीखते जा रहे हैं, कंप्यूटर सीखते जा रहा है, सीखने के बाद जिसको काम नहीं मिल रहा तो वो यही काम कर रहा है, इसमें ज़्यादा पैसा है। घर में बैठे रहो, दिन भर में एक भी क्लाइंट आया, एक महीने में अगर एक भी कस्टमर मिल गया साइबर क्राइम्स में तो उसका हो गया पैसा। जामताड़ा का नाम बहुत फेमस है, जामताड़ा। तो उसी तरीके से पासवर्ड रखते समय हमेशा क्या होना चाहिए, अपने आप को जो है पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, ऐसा जो गेस नहीं हो, इजिली गेस नहीं हो। स्पेयर फिशिंग एक्सप्लेन, साइबर क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई द पीस ऑफ डाटा दैट दे वांट and identify the individuals who has it. Cyber criminals research the individual and pause on the one of their trusted softwares. Next, virus and worms. What is the basically difference between viruses and worms? A virus is a program that is loaded into your computer without your knowledge and run against your wish. आपकी इच्छा के बिना ही वो आपके कंप्यूटर में चलने लगेगा। Solution. What is the solution? The solution to install a security suite that protect the computer against the threats such as virus and worms. आपको अपने सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा। These are the types of एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जनरली वी कैन इंस्टॉल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस का, आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। हैकर्स, what a hacker is a person who break into computers usually gaining access to the administrative control. hackers basically एक पर्सन होता है जो आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को वो हैक कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा विदाउट टू गेट एक्सेस। आपके बिना जो है, परमिशन के बिना जो है वो उसको एक्सेस करने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइप्स ऑफ हैकर्स, व्हाइट हैट hackers, grey hat hackers and black hat hackers. These are the types of hackers. How to prevent hacking? It may be impossible to prevent computer hacking. However, effective security controls, including a strong password and the use of firewall, can help us. Trojan horses. Trojan horses are basically email viruses that can duplicate themselves, steal information or harm the computer system. These viruses are most serious threats to the computer. आजकल सबसे ज़्यादा अगर वायरसेस आएंगे तो यही आएंगे, ट्रोजन हॉर्सेस, यही वायरसेस आएंगे। ये बेसिकली ईमेल के द्वारा जो है किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। हाउ टू अवॉइड द ट्रोजन? We use security suite such as Avast Internet Security will prevent you from downloading Trojan horses. आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं ट्रोजन हॉर्सेस को रिमूव करने के। पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड अटैक are attacks by hackers that are able to determine password or find passwords to different protected electronic areas and social networking sites. Always use a strong password
नेवर यूज द सेम पासवर्ड फॉर टू डिफरेंट साइट। अगर एक जगह कोई पासवर्ड यूज आपने किया है तो किसी दूसरे साइट में दूसरा पासवर्ड रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि वो एक लेक्चर के रूप में। साइबर सिक्योरिटी में सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन इंडिया। इंडिया में भी साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग साइबर ऑफिसेस बने हुए हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी लीगल फ्रेम जो है वो बना हुआ, आईटी एक्ट बना हुआ है जिसके तहत ये सब काम होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंडिया स्टैंड द 10th इन द साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड। आज इंडिया का जो स्थिति है साइबर क्राइम में पूरे वर्ल्ड में 10th रैंक पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। और ऐसा देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है, लास्ट 4 ईयर्स से साइबर क्राइम्स का जो केसेस है वो ज़्यादा एक्सीड किए हैं, ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। और ज़्यादा इंक्रीज करने का पीछे रीज़न भी है, जो पहले जो है लोगों के पास काम था, जो टेक्निकल पर्सन थे उन लोगों के पास काम था, लेकिन कोविड के वजह से वो टेक्निकल काम जो है वो बंद हो गया। अब वो खाली टेक्निकल जो काम है उनको उस लेवल का काम उनको कहाँ से मिलेगा, तो वो इस केसेस में भी अब लोग अपने आप को इंटीग्रेट करने लगे, जो हम लोग यहाँ से निकाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी behavior that defines the best practices that must be adopted by the user when he and she use a computer system. साइबर एथिक्स बेसिकली जो है आप कंप्यूटर को यूज कैसे करेंगे उसी से रिलेटेड है, आपके डिपेंड व्यवहार से रिलेटेड है। इन सिंपल टर्म्स साइबर एथिक्स refers to protect the moral and financial social behavior of individuals। किसी भी इंडिविजुअल्स का सोशल बिहेवियर या मोरल बिहेवियर कंप्यूटर यूज करते समय क्या होना चाहिए, उसी को साइबर एथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। साइबर एथिक्स इंगेज द यूजर टू यूज इंटरनेट सेफली एंड emphasize their behavior that must be adopted while using the cyber technology। साइबर एथिक्स बेसिकली आप इंगेज करता है, यूजर को गाइड करता है कि आप इंटरनेट यूज करते समय आपका बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इंटरनेट मिल जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट मिल जाता है, तो हम किसी भी चीज़ के खिलाफ, किसी के पार्टी के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हम लोग ऐसे ही कुछ लिख देते हैं जो कि गलत है, वैसा आपको नहीं करना है। तो इसमें साइबर एथिक्स में बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि कैसे यूज करना है। डोंट डू, आपको क्या नहीं करना है कंप्यूटर यूज करते समय। रूड एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी भी आप अगर सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते हैं तो आपको रूड नहीं होना है, ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज वहाँ पे नहीं करना है, किसी को गाली उली नहीं लिख देना है, ये सब गलत चीज़ है। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग कॉन्सेप्ट जिसमें किसी के बारे में अनवांटेड चीज हम लोग बोलते रहते हैं, साइबर बुलिंग। पहला कॉपी पेस्ट बेसिकली हम लोग करते हैं, वो सब नहीं करना है। किसी दूसरे ने कुछ लिखा उसी को कॉपी पेस्ट हम लोग कर दिए, तो वो सब चीज़ नहीं करना है। हैकिंग, कॉपीराइट एंड डाउनलोडिंग, अननेसेसरी जो है किसी के दूसरे का कॉन्सेप्ट जो है, उस दूसरे का क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उसको डाउनलोड कर लिया फिर अपने दूसरे में शेयर कर दिए, वो कॉन्सेप्ट नहीं करना है। इसी का यूज है जब हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं तो यूट्यूब जो है वो कंटेंट प्रोटेक्टर होता है, वो आपके कंटेंट को रीड करता है। अगर उस कंटेंट को लगता है हाँ ये कंटेंट किसी दूसरे ने अपलोड किया है, यानी क्रिएटिविटी जो है वो किसी दूसरे की है और उसको मॉडिफाई करके हम अगर यूज करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं करना है, उसी के बारे में। साइबर एथिक्स फोकस ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट: प्राइवेसी, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी। Privacy, the content that is available on the internet should not hurt any moral, emotional or personal ethics of individuals। मतलब एक्टिविटी जो है प्राइवेसी क्या है, वो किसी कंटेंट जो है वो दूसरे का है,
वो आप उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं। इमोशनल या पर्सनल इथिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यूजर शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एनी इंफॉर्मेशन which they don't want to share openly. Next, IPR, Intellectual Property Right. IPR stands for Intellectual Property Rights. IPR defines that the owners have the complete right to the content that is posted on the internet. The entire content is solely a belonging of the originator, and no individual is allowed to claim the content published by the original creators. IPR आजकल जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कराता है। क्रिएटिविटी जो है किसी दूसरे का हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा मैसेज भी जो है संजय सर आप भी देखे होंगे, तो हमारे यूट्यूब के लिए कंटेंट जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो मैसेज क्या होता है, आता है ये कंटेंट जो है यूज़ किया आपने, ये किसी दूसरे का है, आप उसको रिमूव करिए। आपने यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए किसी दूसरे का वीडियो लेते हैं, तो वो वीडियो आप बिना रिटेन परमिशन का नहीं ले सकते। मतलब अगर उस वीडियो को यूज़ करते हैं तो नहीं कर सकते। बहुत सारे मूवीज़ में भी अगर आप लोग देखे होंगे, फेसबुक पर भी अगर कुछ हम लोग सीरियल देखते हैं तो किसी चीज़ का शो दिखाता है, तो खास करके जब वो म्यूजिक कुछ बोलता है तो देखिएगा वहाँ वो हटा देता है। अब वो म्यूजिक नहीं आ रही, वो कॉन्सेप्ट इसीलिए है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉन्सेप्ट के लिए है कि आप अब किसी दूसरे का साउंड, किसी दूसरे का म्यूजिक का कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते, उसको हटा देना होगा। आपको इस तरीके का दिखाते हैं, आप सुनिए, सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को दिखाते हैं, सुनाते हैं, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वीडियो बना के आप यूट्यूब पर दोबारा से अपलोड नहीं कर सकते। करना होगा तो उस साउंड को वहां से हटाना होगा, हटा के तब आप अपलोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट इज द मोस्ट बेसिक एथिकल राइट दैट एवरी यूजर मस्ट be accessible. User of the internet should feel safe while they surf on the net. Security in general means only authorized user to have access to the content on the computer. Next, accuracy. The content available on the internet is accessed by the billions of users, यानी आपका जो कंटेंट जो है, जो यूज हम लोग कर रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ यूजर्स जो है आपके उस कंटेंट को देख रहा है। तो आप कभी भी कंटेंट जो है अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे इंटरनेट पर, तो वो एक्यूरेसी उसका होना चाहिए। इफ देयर इज नो रिलेटिविटी of the information that posted online, then it would mislead the mass. और आप जो गलत इंफॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, खासकर हम लोग विकीपीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो विकीपीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होता, वो कंटेंट जो है उसको रीड करता है कि आपने ये कंटेंट किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में डाला, क्या वो सही है नहीं है। एक्यूरेसी बेसिकली उसी को डिफाइन करेगा। User trust that content of the internet and rely heavily on the internet for facts. Therefore, it is highly needed that asked information is correct and reliable. Best policy that individual must be adopted while using the internet. First, being polite and not using harsh words. Avoid clicking or unknown links.
wisely opening emails from known sender only, not mocking anywhere on social media, be careful and research before installing any free software। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज जो है दिया हुआ है, बेस्ट पॉलिसी दैट इंडिविजुअल मस्ट बी अडॉप्टेड व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। आप इंटरनेट यूज करते समय कम से कम इस पॉलिसी को यूज जरूर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखेंगे। बीइंग पोलाइट एंड नॉट यूजिंग हार्श वर्ड। कभी भी नेटवर्किंग यूज करते समय, नेटवर्किंग साइट यूज करते समय, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम यूज अगर आप करते हैं, उस पे आपको बीइंग पोलाइट होना है, हार्श वर्ड का यूज नहीं करना है। क्योंकि हम लोग कभी कभी गुस्सा में आके या किसी से प्रेरित होके या इन्वायरमेंट से, टीवी से प्रेरित होके कुछ वर्ड हम लोग लिख देते हैं फेसबुक पे, या हमको भी ये चीज़ बुरा लगा, वो सब चीज़ मत करिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप उसके एक पार्ट बन जाते हैं, आप उसके उस एक्टिविटीज़ के पार्ट बन जाते हैं। उस इंसिडेंट से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन हम उसमें पार्ट हो जाते हैं और उसके कुछ गलत होगा तो उसको भी ट्रेस कर लिया जाता है कि भाई सोशल नेटवर्किंग साइट पर इन्होंने इस चीज़ के बारे में पोस्टेड किया था। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले की घटना जो है दिमाग में होगी, कर्नाटका की एक्टिविटी भी, तो उसके बारे में वो सब ट्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स। किसी भी अननोन लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। इंटरनेट यूज करते समय हमेशा फेसबुक हो या कोई भी साइट हो, कुछ भी एक्टिविटी करिए, एक इवन सिंपल ब्राउजर खोल के अगर काम की चीज ही ढूंढ रहे हैं तो नीचे जो है बहुत सारा डिस्प्ले होगा, अननोन लिंक्स होगा। मोबाइल अगर चलाते हैं, मोबाइल ही खोलेंगे, गूगल खोल के अभी हम कुछ काम करने वाले जा रहे हैं सर्च करने के लिए, तो नीचे जो है कुछ कुछ आते रहता है, मैसेज आते रहता है, एडवर्टीजमेंट आते रहता है, तो हम उस पर क्लिक किए और क्या होगा, काम मेरा था जहाँ पे वो चीज़ छूट जाएगा, दूसरा चीज़ शुरू हो जाएगा। आजकल ऑब्जर्व किया गया है, पिछले 5 सालों में रिसर्च किया गया है, अब हम लोग जिस काम के लिए मोबाइल चलाते थे, इंटरनेट यूज़ करते थे, वो काम छोड़ के बाकी 90% काम हम लोग कर लेते हैं। अगर इंटरनेट हमको चलाना है, इंटरनेट में कुछ सर्च करना है, तो ऐसा केसेस देखा गया है जो उस काम को सर्च करने का जवाब पे हम लोग दूसरे एक्टिविटी में चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं। यूट्यूब पर ही कुछ सर्च कर रहा है, 1 लाइन 2 लाइन सर्च किए, दिमाग लगाए, तब तक तीसरा जो है डाइवर्ट करने के लिए आ जाएगा, जो सर इस पर क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, वहाँ से। खास करके बच्चों के लिए, हम लोग यंग जो है उसको अब जल्दी नहीं जाते, हम लोग जिस काम के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। लेकिन जो हमारे यंग जनरेशन जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बेसिकली जो है इस चीज़ में एक्टिवेट हो जाता है, उस चीज़ पर चले जाते हैं। नॉट मॉकिंग एनीवन ऑन सोशल मीडिया, बी केयरफुल एंड रिसर्च बिफोर इंस्टॉलिंग एनी फ्री सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है, आपको इसको इंस्टॉल करने से पहले 2 बार 3 बार सोचना है। Don't contribute to any malpractice that can lead the leak of data of individual or organization. Never compromise with the safety of your system. Always install an antivirus on your system. So these are the best practices that individual must be adopted while using the internet. Next, cyber security awareness 2022. In October 2022, the themes is for cyber security awareness. See yourself in cyber, together we make it safer. एक थीम रखा गया, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोग देखे भी होंगे, अक्टूबर से ही हमारे मोबाइल पे जो है एक मैसेज आता है, स्वच्छता पखवाड़ा, मोबाइल पर मैसेज आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है आपको एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैसेज जो है आपको डिस्प्ले कर रहा है। आप अपने मोबाइल में देखिए, कुछ वायरसेस अगर आ गए हैं, कुछ है सर्च करने के लिए, एक लिंक के साथ जो है गवर्नमेंट जो है भेज रहा है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए है कि आप
साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितने जागरूक है, और उनका अक्टूबर में उनका एक थीम था, सी योर सेल्फ इन साइबर। आप साइबर में किस प्रकार अपने आप को देखते हैं, टुगेदर वी मेक इट सेफर, उसके तहत हम लोग भी सेफ हो जाएगा। फोकसिंग ऑन द पीपल पार्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस टुगेदर एज इंडिविजुअल्स, employees and citizens, we collectively put effort to maintain digital hygiene, follow security based practices and strive for a safer cyber space. From students corner, student point of view से बच्चों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कैसे जागरूक करेंगे। सिक्योर योर ऑनलाइन प्रेजेंस जस्ट लाइक यू सिक्योर योर सेल्फ। नेक्स्ट, बी माइंडफुल ऑफ योर अपीयरेंस ऑन वीडियो चैट एंड वीडियो कॉल्स। बच्चों को हम लोग जो है जागरूक करेंगे। बच्चे जो है आजकल आप नोटिस किए होंगे, लैपटॉप में वेब कैम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहता है, पहले से उसमें दिया हुआ रहता है। फेसबुक जब भी हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम जब भी यूज़ करते हैं, या कोई भी अदर नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, तो क्या करेगा, लोकेशन आपका ऑन रहता है, कैमरा आपका ऑन रहता है, माइक आपका ऑन रहता है। मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें, मोबाइल फोन में अगर हम कोई भी एक्टिवेट करते हैं, तो आप लोग नोटिस किए होंगे वो हमेशा परमिशन क्यों मांगता है, स्टोरेज का, कंटेंट का, आपका कैमरा का, आपका माइक का, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके अवेयर करेंगे स्टूडेंट्स को। जो आप स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट को, तो वीडियो कॉल और वीडियो चैट के समय इस बात का उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे जो क्या क्या करना है। Don't use a smartphone for taking sensitive personal photographs and videos. उनको अवेयर करेंगे कि आपको जो ये स्मार्टफोन दिया गया है, आपके पास ये स्मार्टफोन है, तो उसका आप सेंसिटिव पर्सनल फोटोग्राफ्स और वीडियो के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इनको जानकारी देना होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में इस चीज़ को देखा गया है कि मोस्टली सफ़र होते हैं बच्चे, उनके पास बहुत सारा सेंसिटिव डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। तो इसको लेकर स्टूडेंट को भी हमको अवेयरनेस करना होगा। इसीलिए तो कहा, स्टार्टिंग में ही कहा, कि साइबर सिक्योरिटी और एथिक्स जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आप तब तक सिक्योर है जब तक आप अवेयर हैं। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप सिक्योर नहीं है। और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में कोई भी इंसान हो, वो अपने अवेयरनेस के द्वारा, नॉलेज के द्वारा जो है जागरूकता फैला के जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस विथ पासवर्ड। आपका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मोबाइल फोन है, हमेशा उसमें पासवर्ड डाल के रखिए, हमेशा। बी अवेयर ऑफ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स, बहुत सारे डुप्लीकेट सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपको उससे अवेयर होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स कॉर्नर से आपको कैसे अवेयर करना है, टॉक टू योर चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। सेट क्लियर गाइडलाइंस फॉर इंटरनेट एंड ऑनलाइन यूजेस गिविंग ऑप्शन। आपको बीइंग अ पेरेंट्स, आपको जो है बच्चे से बात करना होगा और उनको एक गाइडलाइन बताना होगा, समझाना होगा कि आपको इंटरनेट कैसे यूज करेंगे, आप ऑनलाइन गेम्स जो है नहीं करेंगे, उसको लेकर बताएंगे। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम साइबर ग्रूमिंग, नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक्स, कवर योर वेबकैम। अगर जरूरत नहीं हो, अगर आपको यूज नहीं हो, लैपटॉप है तो उसका जो वेबकैम है उसको हमेशा जो है बंद करके रखेंगे, अगर यूज नहीं है तो। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद पेरेंट कंट्रोल। मोबाइल में अगर यूट्यूब भी अगर आप लोग चलाते हैं, यूट्यूब भी रखे हुए हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल एक्टिविटीज को ऑन करके तब बच्चों को देंगे। छोटे बच्चे हैं, अगर मोबाइल सर्च करते समय गलत चीज़ सर्च हो गया तो उससे ज़्यादा अच्छा है जब पहले ही पेरेंटल कंट्रोल एक्टिविटी को ऑन करके तब पकड़ा देंगे।
क्योंकि वो जो कंटेंट है, जो अननेसेसरी कंटेंट आ जाता है तो उसको वो रिमूव करेगा। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड सेट सिक्योर ब्राउजिंग सेटिंग, ब्राउजर सेटिंग्स में जाके सिक्योर सेटिंग को ऑन करेंगे। नेक्स्ट, बीइंग इंस्टीट्यूशन को लेकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बताया जो जागरूकता साइबर जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है एवरी वेडनेसडे को एवरी मंथ में। ये अरेंजमेंट किया गया है, साइबर क्राइम एंड सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा एक जागरूक किया जा रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी साइबर सिक्योरिटी में जनरेट किया गया है, जहां आप उसके द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर से भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग साइबर सिक्योरिटी से बच सकते हैं। थैंक यू।